good evening to all of you. Welcome to our awesome session. Today we are going to talk about how does our yesterday shape our today. मैम नेक्स्ट स्लाइड. मैम इसके भी आगे वाली. बिना समझ के भी हम कितने बच्चे थे, वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे. The children have no worries, no stress, and they are free from filth of world life. So today we are going to talk about the most beautiful stage of our life which shape our future. First of all, what do you mean by childhood? Yes. What does childhood mean to you? टीनेज के पहले पहले की एज हमारी चाइल्डहुड होती है. मैम जब हम बिना टेंशन के घूमते थे, जहाँ हमें जाना होता था हम वहां जाते थे. Okay. Please mute yourself. Yes. Anybody else? What do you think when you think about your childhood? Ma'am, can I? Yes. No tension, no fear. What we can want, we can do. Very मैम true. मैं बताऊं. Hmm. मैम हम अपने चाइल्डहुड में जैसे कि कहीं भी खेल सकते थे आराम से. Okay. मैं बताऊं. Yes. मैम अगर हम 1 या फिर 12 13 एज के होते थे तो हम मतलब कुछ भी मतलब कहीं भी जाके घूम सकते थे. Okay. Stress free, tension free time. This is what I understand. Over to you, Dolly. Yeah, according to me, a very important part in every person's life, one that must be cherished and remembered for every person because once it's gone, we cannot bring it back. How did you spend your childhood? Freely. Okay. Full of joyness. Right. Without any depression and tension. Okay. Without any tension. Great. With lots of memories. Good memories, right? Good. Anyone else? Okay. Dolly? Ma'am, how did you spend your childhood? I spent my childhood with lot of mischiefs. बहुत शैतान थी मैं. That is my best memory. Okay, ma'am. I also want to share my example. मेरे पेरेंट्स भी मुझे बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बहुत छोटी 2 ढाई साल की, तो मैं बहुत उन्हें परेशान किया करती थी. जैसे मम्मी जब काम करती थी तो मैं इधर उधर कहीं चली जाती थी तो मम्मी को मुझे पकड़ के लाना पड़ता था. इस वजह से मम्मी मुझे दरवाजे पे बांध के रखा करती थी. So good. कैद करके जाते थे आपको. Okay. We move on. Yes, ma'am. Next slide. What are the factors that affect our childhood? First, first is environment. Let's see how is affect us. Make us feel secure and confident. Teach us to value other, support us expressing feeling, creates opportunity for us to grow, helps in skill development. Now the second one is geographical influence. Our geographical area determines how well we develop based on the exposure we get, whether social, economic, or even physical. It will influence how we eventually grown up. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस कैसे अफेक्ट करता है. जैसे
हमारी जो फैमिली थी, हम पहले हिमाचल में रहा करते थे। अब मेरे कुछ रिलेटिव्स अभी भी हिमाचल में रहते हैं। तो मेरे कजन जो है, उनको स्कूल जो है बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास स्कूल नहीं होता। तो हमारे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ज्योग्राफिकल एरिया भी जो है अफेक्ट करता है। The third one is family. We learn how to trust, seek relationship, and find comfort with others as well as from family. Culture factor. Culture can affect how we will build value, language, and belief system, and understanding how of themselves as a member of society. Nutrients. Now, nutrients. Nutrients impact on our physical growth as well as brain development. Now, a question for you. Is any factor from this that affected you most? Yes, think of any of these factors or any other factor which might have affected your childhood. Ma'am, family. Can you explain? Ma'am, like whatever we did in childhood, all things depend on family, and family decides what to do and how to do. Okay, so in your childhood, your family was taking your decisions. मैम मैं बताऊं? Yes. मैम हम अपने चाइल्डहुड में ना, जैसे हम वहाँ पे रहते थे चंडीगढ़ में, तो ना इसलिए हम फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्कूल तो पास पास है, पर वहाँ पे बहुत दूर दूर जाना होता था। ओके, सो क्या इफेक्ट आया उसका आपके चाइल्डहुड पे? क्या? मैम इससे हमें ये पकड़ आया कि हमें मतलब वहाँ पे जो स्कूल थे वहाँ पे जो है हमें बहुत चल के जाना होता था ना। यहाँ पे तो हम बस हल्का सा चलते हैं कि हमारा स्कूल ही आ जाता है। ओके, सो आपको वॉकिंग की प्रैक्टिस हो गई। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? Any factor you think affected your childhood? I think the students who have come from other states, जो दिल्ली से नहीं थे, वो रिलेट कर पाएंगे कि उनका चाइल्डहुड वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे सी इन दिल्ली। मैम कैन आई? यस। मैम न्यूट्रिशन जैसे पोषण, जो कि हमारे शारीरिक ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है फिजिकली। फॉर एग्जांपल जैसे आप सभी को ये पता ही होगा कि जो हमारे जीन्स होते हैं, हमारे माता पिता के जो जीन्स होते हैं वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो जैसे अगर बचपन में कोई हमारे पोषण मतलब खराब होता है, ध्यान नहीं रखा जाता है, तो हमारी फिजिकली ग्रोथ, फॉर एग्जांपल हमारा मतलब ये हाइट हाइट बहुत छोटी रह जाती है। तो इसका इफेक्ट बच्चों पे भी पड़ता है। अगर न्यूट्रिशन पोषण अगर ठीक नहीं होगा तो बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा इस चीज का। और भी बहुत से फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी चाइल्डहुड पर, जिससे वजह से हम उतनी रह जाते हैं। और ये हाइट सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे हिसाब से। Okay, very perfectly stated. Anyone else would like to share anything? Would our teachers interested to give some exam experience? Yes, any of the teacher would like to share their own childhood experiences which has affected them now? Okay, I will share one thing of mine. When I was a child, my parents used to take me to many places. We used to travel a lot. So this way, I got to meet many people around the world, and now I'm not afraid of going anywhere. I like to explore more and more places. जैसे पहले भी मैंने बोला, I like traveling. शायद वो चाइल्डहुड में इम्बाइब हुआ था कि बहुत ट्रैवलिंग तब भी की थी। तो मुझे अलग अलग जगह जाना, वहां देखना, लोगों से मिलना, आई लाइक दैट। तो शायद वो हैबिट वहीं से मेरी इनकलकेट हुई है। Anyone else would like to share? Hello, Manisha ma'am. Hello, students. Myself, Astha Dhingra. Welcome, Astha. First of all, I would like to thank you, and I would like to say sorry, ma'am. You have always invited me for the meeting, and I have never been able to join in time.
बट आज मुझे ज्वाइन करके बहुत अच्छा सा लग रहा है. A very interactive session was going on when I joined. And talking about the factors that affect our childhood, I would like to share, like, I am from a convent school, Saint Anthony's. So being a missionary school, I think मेरे स्कूल का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत डिसिप्लिन बेस्ड था. So it inculcated a sense of discipline in my daily life also. तो वो अब तक मेरे अंदर भी वो है कि मैं डिसिप्लिन के साथ ही रहना पसंद करती हूँ. लाइक मॉर्निंग रूटीन्स हो गए या अपने काम को लेके माय डेली रूटीन, माय डेली टू डू टास्क, whatever they are. So definitely our school, my school environment affected my childhood, and till date it is affecting me by inculcating some positive things in me. Thank you. Thank you for sharing this, Asta. And I think this is a good learning from all our students also, that what we learn in our childhood helps us throughout our life. Like discipline. We always tell our students to be disciplined, and they think that it's kind of rules imposing on them, but now they will realize that it is going to help them lifelong. Thank you for the sharing. Anyone else would like to share? Okay. मैम Yeah, sure. मैम कल्चर फैक्टर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी. Sure. मैम कल्चर फैक्टर जैसे हमारे फैमिली में क्या कल्चर चलता है, किसी का कैसे खाना पीना, पहनावा कैसे होता है, खान पीना कैसे होता है, ये सभी कल्चर फैक्टर जो कि हमें दूसरों से बहुत अलग बनाती है. जो कि अगर जैसे किसी के घर में क्या कैसा पहनावा, कैसा खाना है, जो तो हमें दूसरों से अलग बनाती है. कि कोई मॉडर्न दुनिया में जा रहा है, कोई रूढ़िवादी है, कोई मतलब पुरानी रीतियों को ज्यादा मानता है, कोई मॉडर्न में जाना ज्यादा पसंद करता है. तो यही चीज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी चाइल्डहुड पर भी. तो जो जिस चीज में रहता है उसमें ढलना शुरू कर देता है, उसे वही चीज में रहना कंफर्टेबल रखता है. जैसे पहनावा कि सूट सलवार होते हैं, ये कुछ होता है, किसी को पैंट शर्ट में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, किसी को सूट सलवार में, तो वो उसी में कंफर्टेबल रहता है, जो कि हमें दूसरों से बहुत अलग बनाती है. ये कल्चर फैक्टर भी है जो हमें चाइल्डहुड से इफेक्ट करती है. Yes, very good. It's a very good point that you have discussed. Thank you for the sharing. I think we should move on, Dolly. Yes, ma'am. Yeah. Why childhood is important? Let me tell you, although a man goes through many steps in his life, childhood is considered to be the most golden moment. How? Let's see. This is the time to learn good things and distinguish right from wrong. Parental education has an impact on us before school education. Making mistakes in childhood and learning from them is the most useful things in life ahead. This is the phase of life in which we have a lot to learn. We experience shapes are all our personality. Now tell me, what do you think? Why childhood is important? Yes. Why do you think childhood is important? Yeah, what is the importance of childhood in your life? I mean, अब आप बहुत बड़े तो नहीं हुए हो, but you are teenagers now. So 1 to 12 years की एज में ऐसा क्या आपको लगता है इम्पोर्टेंट था जिसने आपकी लाइफ में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराई? मैम मैं आई. यस, श्योर. मैम चाइल्डहुड में हमारा जो पर्सनैलिटी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, और हमें जो है बचपन में ही जो भी मैनर्स है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मैनर्स हमारे अंदर जो आते हैं वो बचपन से ही आते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. वेरी गुड पॉइंट. हमारा बिहेवियर, जो हम स्क्रीन पे भी वर्ड देख रहे हैं, बिहेवियर का जो बेस बनता है वो चाइल्डहुड में. वेरी गुड. एनीबडी एल्स? मैम मैं यस, श्योर. मैम जैसे मुझे गलतियों से अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो इससे सीखती हूँ. बचपन से मेरी यही है, मतलब बचपन से मैंने यही सीखा है कि अगर मैंने कोई गलती करी है तो उससे सीखना है और आगे बढ़ना है. Great. Learning from our mistakes.
यूजली लोग नहीं करते हैं, रिपीटेडली वही मिस्टेक्स फिर से करते हैं, बट इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इट्स अ वेरी बिग personality development. Anybody else? Which has Manisha ma'am, if you allow, may I share something? most welcome, sir. We are really glad that you're sharing. मैं सच में बच्चों की शेयरिंग सुन के इतना अच्छा लगता है एंड आई फील लाइक शेयरिंग आल्सो टुडे कि मुझे लगता है चाइल्डहुड से मेरे को याद आता है कि हमारे यहाँ पे एक सड़क बन रही थी और जब बन रही थी सीमेंट Sir, your voice is breaking. Can you just repeat? पैर का what you निशान said? पड़ता है तो मुझे लगता है चाइल्डहुड इज लाइक प्रेशर बहुत पड़ते हैं तो चाइल्डहुड में हमारे मेरा मैसेज अगर मिला तो आप कन्वे कर सकते। चाइल्डहुड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इंप्रेशन चाइल्डहुड में पड़ते हैं तो वो बहुत परमानेंट हो जाते हैं थ्रू आउट अवर लाइफ एंड दैट अफेक्ट्स अस इन बिल्डिंग अवर ओन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर एंड ओवरऑल यू नो अवर पर्सनैलिटी बिल्ड्स अप ऑन द बेसिस ऑफ द इंप्रेशंस जो हमारे बचपन में पड़ते हैं। तो हमारा बचपन बहुत ही टेंडर होता है। मेरी आवाज आ पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है एंड आपका जो एसेंस था वो हमें सबको मिल गया। जो चाइल्डहुड मनीषा में मैम जो इम्प्रिंट्स मिलते हैं, दे विल गो विद अस फॉर थ्रू आउट आवर लाइफ। तो राइट yeah, एब्सोल्युटली थैंक thank यू सो you. मच कंटिन्यू सेशन इट्स वंडरफुल। Over to you, Dolly. Next slide, ma'am. What is the role of parents and family in our life? Family. A family who shares a good bond, has an emotional connection, can teach the child the importance of sympathy, compassion, and togetherness. While friends give school-age children a sense of belonging, and they also build our self-esteem and develop social skills. For example, आई एम वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन बिकॉज मेरे पेरेंट्स सुबह शाम पूजा करते हैं तो मेरे अंदर भी ये हैबिट है और ये हैबिट इस हैबिट की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो जिस दिन स्कूल होता है उस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ और इवन जिस दिन संडे भी होता है तो उस दिन भी मेरी जल्दी नींद खुल जाती है। डू यू वांट टू शेयर सम मोर एग्जांपल्स? यस मैम मैं Yes, share करो बेटा one by one. मैम हम जैसे मतलब मैम हमारे मैं करूँ बोलूं Anshi first. Anshi, please speak. मैम अगर हमारे मम्मी पापा पूजा करते थे तो उन दीदी ने बताया ना वैसे ही मेरे में भी आदत है कि अगर मेरे मम्मी पापा सुबह उठ के पूजा करते तो मेरी भी सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। Okay, great. मैम Yes, Nidhi. मेरे में याद है कि अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जैसे उठते जैसे संडे भी होते थे उस दिन भी मैं जल्दी उठ जाती ऐसे मतलब मम्मी पापा जो मतलब भगवान सबकी पूजा करते हैं ऐसे अब मेरे में भी हैबिट आती है जैसे जैसे मम्मी पापा में जो हैबिट होती है वैसे बच्चे में भी धीरे धीरे आती है। Perfectly said. Home environment really affects our habits. Anyone else? Any one habit you think you got from your childhood? यस मैम। Yes, share please. मैम अगर जैसे कि मेरे में ये आदत है कि ना मेरी मम्मी मतलब मेरे को खुद एक बार में सिखाती थी ना बचपन में तो मैं ना एक बार में सीख जाती थी जैसे मम्मी ने ऐसा बोला था ऐसे ही करना है। Okay, तो आप easily follow कर लेते हो. Good. What about the others? We are waiting for your मैम sharing. कहना है Sure, बेटा. मैम मैं इसमें प्राइमरी टीचर्स को भी इंक्लूड करना चाहूंगी कि प्राइमरी टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इनरोल रखते हैं अपना। तो प्राइमरी टीचर से जो मैंने सीखा है बचपन में सीखा था वो अभी तक फॉलो कर रही हूँ कि कोई भी टीचर या फिर कोई भी आपसे बड़ा इंसान है तो उन्हें ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग कहना। Good.
Very good learning that you remember. Anybody else? Ma'am, Yes, ma'am. Okay. I'm waiting for others. Any sharing you want to give? Okay. Over to you, Jyoti. Dolly. Okay, and the next question is, what do you mean by संगत की रंगत? आप जिसके साथ रहते हैं, उनका आपसे क्या असर पड़ता है? Yeah, family की बात तो सबने की. What about friends? Do you remember any childhood friend who has affected you positively or negatively? It could be anything. हेलो मनीषा मैम. हेलो, यस. हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, थोड़ा सा लाउड हो जाइए प्लीज. ओके. तो आपने फ्रेंड्स का कहा, तो बहुत अच्छा सेशन चल रहा है. आप लोगों के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए आप भी बहुत उनके साथ लगे होते हैं, तो अच्छा लगा सुनकर आप लोगों को. तो मैं अपना बचपन का एक किस्सा बताती हूँ कि हमारी जो फ्रेंड्स थे, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी. तो हम लोगों का आपस में हमेशा कंपटीशन ये रहता था कि हम कौन सबसे ज्यादा अच्छा लिखेगा, जिससे हमारी टीचर हमें गुड और वेरी गुड देंगे. तो वहां से फिर हम लोगों में जो कंपटीशन रहा कि सबसे सुंदर लिखना है, अच्छा लिखना है, वो आदत हम लोगों में आज तक बनी हुई है और उससे हम लोगों की हैंड राइटिंग इम्प्रूव हुई उन फ्रेंड्स की वजह से. और उसमें हमारे टीचर्स का भी रोल था. तो मुझे लगता है अगर आप अच्छे दोस्त चुनते हैं तो वो फिर उनका असर लाइफ लॉन्ग आपके ऊपर बना रहता है. थैंक यू मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग है. रादर आपकी बात सुन के मुझे लगा कि मैं आपके ग्रुप में आपकी फ्रेंड तब क्यों नहीं थी. शायद आज मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होती आपकी तरह. नहीं नहीं, आप ऐसे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं. थैंक यू मैम, वेरी गुड. कैरी ऑन. सच ए लर्निंग एक्सपीरियंस जो मैम ने भी शेयरिंग की है कि हम कंपटीशन फ्रेंड्स के बीच में अच्छी चीजों का रखें तो हम उससे भी सीख सकते हैं. I mean, not only childhood, even now, if we try to compete, if I learn from Paramjit ma'am that I should have a good handwriting, it's never too late to start anything good. Thank you, ma'am. मैम Yeah, मैम sure. कुछ Ma'am, can I? Sure, बेटा. जय. मैम ये कहना चाहती हूँ कि हमें मेरी जो चाइल्ड मतलब कि मेरे बचपन में और मेरे अब तक की लाइफ में यही है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. कि फॉर एग्जांपल जैसे पुराना एग्जांपल है कि मैं 14 अगस्त को मैंने सिंगिंग की थी, तो उसमें मुझे घबराहट नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने क्लास में जब किया था तो मुझे बहुत घबराहट होती थी, बोलने मतलब गा नहीं पाती थी. तो मेरी क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अच्छा गा रही है, अच्छा कर रही है. मुझे पता है मैं अच्छा नहीं कर रही इतना, पर मुझे सपोर्ट करते तो मुझे कॉन्फिडेंट आया ताकि मैं वो कहाँ जाके गा सकूं. बच्चों ने कहा कि कोई बात नहीं मैम, एक बार मना कर देंगे तो दूसरी बार तू कर सकती है. तो यही मैंने किया और मुझे कॉन्फिडेंट आया मेरी क्लास के बच्चों की वजह से. Very good sharing. Jay also wanted to share something. Is Jay? Yes, ma'am. मैम व्हेन आई वाज इन क्लास सेकेंड और थर्ड, तो फिर मैम हमें जब भी काम करना होता था तो हम फ्रेंड्स में कंपटीशन होता था कि कौन सबसे पहले कंप्लीट कर लेगा वो वर्क. और हम टीचर्स के साथ ही करते थे, जैसे मैम का खत्म होता था वैसे हमारा भी खत्म होता था. इस वजह से मैम अभी मेरा राइटिंग स्पीड काफी अच्छा है. Very good sharing. मैम Who would like to share? Anyone else? Okay, over to you, Dolly. मैम Ma'am, anybody like to share? Yeah, who is it? I didn't get to know. Please share. किसको शेयर करना है बेटा, बोलो. मैम बोलो बच्चे. मैम मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जो बहुत लड़ाई होती थी ना, तो फिर मतलब 1 मिनट के अंदर हम मिल भी जाते थे. हमारी राइटिंग भी सेम है. Good. So you had supportive friends. Very good. Over to you, Dolly. मैम, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे?
मेरा अच्छा बाद में करूंगी, पहले आप आगे करो। Okay, ma'am, next line. Let's see some glimpse of our sweet memories. हम सब ने ये कैंडीज अपने चाइल्डहुड में जरूर खाई होगी। इनफैक्ट जूसी तो हमारी समर में फेवरेट होती थी, और आज भी हमें ये कैंडीज कहीं दिख जाए तो हम उसे जरूर खरीदते हैं। नाउ टेल मी, अपने फेवरेट स्नैक्स कौन, आपकी फेवरेट स्नैक कौन सी है? That juicy. Dairy Milk and 5 Star. Okay, we are going to the next. Do you This is the game that we still play जब भी हम क्लास में फ्री बैठे होते हैं। डू यू सजेस्ट सम मोर एक्सपीरियंस एग्जाम्पल कि और कौन कौन से गेम हम पहले खेला करते थे और अब हम कुछ ही टाइम मिलता है ऐसे गेम खेलने के लिए? Ma'am, if you have played this game. Chupan Chupai. Pen fight. Bingo. Okay. मैम क्या नाम है? Yes, yes. मैम जीरो का था। मैम इमली। Okay, Amrita, yes. मैम आई वुड टू शेयर आवर 10th क्लास एक्सपीरियंस। मतलब हमने जो भी फ्री पीरियड्स बहुत ज्यादा अपनी मेमोरीज के साथ में बिताए। लाइक जो भी फ्री पीरियड होता था, मतलब हम सब कोई भी सॉन्ग्स गाने लग जाते थे विदाउट एनी अंताक्षरी, बस गाते थे और उस पल को हमने इतना एंजॉय करा है, बहुत ही ज्यादा। वो हमारे लिए इतना मेमोरेबल हो गया है कि शायद ही हम उसे कभी भुला पाएंगे। गुड। बट वो साउंड प्रूफ रूम था क्या तुम्हारा? बाहर तक तो आवाज नहीं आई कभी। मैम सारी क्लास में गाते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत तो गा ही लेते हैं। हाँ नहीं, बट बाहर आवाज नहीं आई, आई होती तो सब बंद हो जाता ना। एनीवे तो मैम हम यही चीज का ध्यान रखते थे ना कि नीचे प्रिंसिपल रूम भी है, मैं वहां तक आवाज नहीं पहुंचानी, अपने गेट वेट that is बंद why I करके was आराम से। surprised that your room was just very near to the principal room. यस मैम। You managed. Good. और मैम हम ज्यादातर जब गाना गाते थे उस दिन प्रिंसिपल मैम आती ही नहीं थी। अच्छा, तो पहले तुम उनके अटेंडेंस देख के गाते थे। ओके, गुड। नेक्स्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैम मैम एक बार उस स्लाइड पे जाना। ओके। मेरा ये क्वेश्चन है कि किसी को कोई अपनी ऐसी आदतें याद हैं जो पहले हम क्या करते थे, अब वो सोच के हंसी आती है? जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जब हम छोटे थे तो हम ये सोचते कि जब जो पेंसिल को छील के जो उसमें से जो वो निकलता है, हम वो दूध में डालेंगे तो वो इरेजर बन जाएगा। किसी को याद है ये सब चीजें? कोई और एग्जांपल बताना चाहेगा कोई? हेलो यस हेलो। यस यस। हाँ जी, हम लोग अपनी नोटबुक में मोर पंख रखा करते थे ये सोच के कि हमें विद्या आ जाएगी। वेरी राइट। है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। एंड मैम चौक भी देते थे कि वो बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। राइट। अच्छा, हमारी ड्राइंग बुक की सबसे फर्स्ट ड्राइंग कौन सी हुआ करती थी? पहाड़ और रिवर। Who is there? Okay, I've muted it. Yes. हमारी ड्राइंग बुक की फर्स्ट ड्राइंग कौन सी हुआ करती थी? सीनरी। इसमें पहाड़ होते थे, यस, हाउस। नदी बहती थी। मैंने तो सोचा टीचर का कार्टून। Okay, we're moving on to the next slide now. Okay. Anybody else fascinated by this as a kid? Yes, I have. Yes, I also. So,
तो जब आप I ये करते हैं also. तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? I was just enjoying that. Yes, I have a blood in my thumb. Okay. Yeah. If I talk about me, I was very fascinated by this because मुझे लगता था कि ये मेरे थम्स का जो है ब्लड शो कर रहा है इसमें। Good. अच्छा, कोई ये ऐसी हरकत ऐसे करते था कि जब हम बकेट में जो है पानी भर रहे होते थे, फिर भी हम अपना जो मग है उसमें लगा करके बकेट को भरा करते थे और हमें लगता था कि इससे पानी जल्दी भर जाएगा। Yes. होता था। और जो हमारे मतलब स्विच बोर्ड का जो स्विच होता है, हमें उसको बीच में बैलेंस करने की कोशिश किया करते थे। Yes. अच्छा, किसी ने मिट्टी के किचन सेट से खेला है? हाँ, Yes, मैंने I किया have. है। मैंने Yes. हाँ। As Dolly is taking everybody to the memory lane. Okay, Dolly, we're going to the next. Okay. It is something that a kid has always dreamed of. Have you ever dreamed like this? Yes, I was thinking about chocolate house. Okay. Now, if I put the question like, how many of you dreamt of school as a good memory, good dream, or as a bad dream? I had seen as a good dream. Still, Who is shouting? Anyway. Anybody else? मैम, मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगी। तो हम मतलब 4 भाई बहन हैं, तो हम 3 जब बड़े हो गए थे तो हम स्कूल जाया करते थे, और जो हमारा छोटा वाला भाई था उसको हम चले जाते थे, वो अकेला रह जाता था, तो उसको भी मन करता था कि मैं भी स्कूल जाऊं। और फिर उसका एडमिशन 2.5 साल में इस वजह से करा दिया गया था क्योंकि वो रोता था स्कूल जाने के लिए। इवन मेरे भाई के साथ भी ऐसा था, वो तो 2 साल में स्कूल जाना स्टार्ट कर देता उसने। Good. मैम, मैंने तो ये भी कभी सोच रखा है कि स्कूल के कहीं पैर निकल आए और वो कहीं से वहां से भाग जाए। Okay, now we'll मैम come to the next. Yes, Dolly. मैम ये पहले वाले टॉपिक पे कुछ कहना चाहूंगी। बोलो बेटा। मैम, मैं पहले यही सोचती थी कि काश मेरे हाथों में भी जादू होते ताकि मैं भी कुछ कर सकती। Okay. मैं किसी को उड़ा दूं तो किसी को कुछ कर दूं, किसी को मतलब जैसे टीवी में देखते हैं ना, जब दृष्टि एक नाटक चलता था पहले, वो देखा था, उसमें वो जादू करते थे, मेरा भी मन करता था मैं भी उनकी तरह जादू करूं। Good man. और मेरा मन करता था कि काश मैं उड़ पाऊं परी की तरह। मैम, काश अलादीन का जी मिल जाता, ये थिंकिंग चलती थी। Good, sweet memories of your childhood. I'm glad to hear you all. Over to you, Dolly. उस समय बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जैसे चाहे वैसे शेप दिया जा सकता है। Childhood is the most prominent stage which decides how our present would be. It is clear that childhood has an effect on our future. Our early experience shapes our belief about ourselves and other and the world. What are the things you have learned which help you to shape your future? Okay, here I'll give a sharing. In my childhood, my parents used to send me alone to the bank or to any such place, so or post office, so that I learn how to deal with such situations. So this has helped me in facing all the situations bravely now. This is, I think, how my childhood has shaped my today. Anyone else? यस मैम, आई थिंक चाइल्डहुड में मतलब जो भी हमने एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से मैंने आई थिंक इंडिपेंडेंट होना सीखा है। लाइक हर वक्त पेरेंट्स साथ नहीं चल सकते, जैसे आपने बोला कि बैंक और हर जगह आप अकेले गए तो उससे जो है कैसे डील करना है वो आया। तो मेरे चाइल्डहुड से मैंने इंडिपेंडेंट होना सीखा
क्योंकि हर वक्त जो है वो पेरेंट्स साथ नहीं होते थे, तो हमेशा हर काम इंडिपेंडेंटली कैसे करना है ये सीखा मैंने अपने चाइल्डहुड से। माई चाइल्डहुड मेक मी मोर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हर वक्त कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, आप अपनी हेल्प जो है वो खुद ही कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Very, very good sharing. And it's a learning lesson for all of us. Anyone else would like to share? यस मैम। Yes, मैम sir. जब मैं 5-6 साल की थी तब एक बार मेरे पापा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई थी, तो पूरी फैमिली पटना चले गए थे। पापा वहां पे एडमिट थे, मैं अकेले घर पे थी और मेरे दादाजी थे। तो उस टाइम की वजह से अब मुझे ना घर पे अकेले रहने में डर नहीं लगता। जैसे मैं बहुत सारे फ्रेंड्स से बात करती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि मैं अकेले घर पे नहीं रह सकती, लेकिन मुझे अकेले रहने में या कहीं अकेले आने जाने में अब डर नहीं लगता। उस टाइम बहुत बड़ा, मतलब गांव में तो बहुत बड़ा घर होता है, वहां पे अकेले रहना, 5 साल की थी उस टाइम, तो उस टाइम तो काफी डर लगता था। लेकिन उस वजह से अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, नहीं घबराहट होती है, मैं आराम से अकेले इजिली रह जाती हूँ Very और good. कहीं भी आ जा सकती हूँ। You're now fearless. Very good. Yes, more मैम sharing. मैं एक्चुअली Yes, yes. यस मैम, मैम छोटी थी तो छोटी भी क्या, अभी भी मुझे मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि कोई भी काम हो पहले खुद करने की कोशिश करो, दूसरों पे डिपेंड ना रहो। तो मैं अपना काम पहले खुद करने पे कोशिश करती हूँ और इंडिपेंडेंट बनना चाहती Very हूँ। good. So you want to do do all work yourself instead of being dependent on others. Anyone wants to share? Yes, मैम मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैम मैंने यही चीज सीखी है कि दूसरों पर डिपेंड कभी मत रहना, क्योंकि अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो वो आपका फायदा ही उठाएगा, और अगर वो नहीं भी उठाएगा तो आपकी ही गलती होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर उसने कुछ किया है और आप उसके ऊपर डिपेंड है कि ये सही है वो ठीक है, वो अपना फैसला खुद लेगा आपकी जिंदगी का, तो वो उसका इफेक्ट आपके जीवन में कहीं ना कहीं जरूर पड़ जाएगा। अब चाहे आपको वो गलती लगे किसी और की या खुद की, कहीं ना कहीं गलती आपकी खुद की या किसी की लगेगी, और आपको अफसोस होगा कि मैंने शायद गलत किया, मुझे उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि वो आपको धोखा दे चुका है। good. Very good. Over to you, Dolly. Next slide. Next slide, ma'am. What was your childhood idol and do you still want to be like him or her? First of all, let me tell you, in childhood, we want to be like whom we watch the most, like Superman, Spider-Man, Bheem, Doraemon, Fairy, and so on. For example, जब मैं छोटी थी तब मैं भीम कार्टून देखा करती थी और उसमें मुझे राजकुमारी इंदुमती का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था, वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा करती थी। तो मैं सोचती थी कि काश मैं भी ऐसी इन्हीं की तरह बन जाऊं। But now, as I have grown up and I am mature enough to choose correct idol, that is my father. Now tell me, what was your childhood idol, and do you still want to be like him or her? हाँ जी, बचपन में बड़े होके क्या बनना था, क्या सोचा था, और अब उस पर हंसी भी आती होगी। Yes. Anybody would like to share? यस मैम, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि हंसी भी आएगी वो सोच के, तो लिटरली मुझे आ रही है अभी हंसी। आई थिंक मेरे बचपन का आइडल जो था एक सेलिब्रिटी था, टीवी एक्टर, और अभी भी है। इन क्लास 10th मैंने देखा था फर्स्ट शो, और उसके बाद से लेके अब तक 2010 से लेके 2023 तक, अब तक उस सेलिब्रिटी के जितने भी शोज आए हैं मैं सारे देखती हूँ, और अभी भी आ रहा है मैं अभी भी देखती हूँ। तो पहले मुझे लगता था मुझे एक्टर बनना है, मुंबई जाना है, घूमना है, मिलना है, तो लेकिन अब जब चेंज हुए हैं, मतलब थोड़ी समझ आई है,
तो अभी भी वो मेरे आइडियल हैं, लेकिन अब जो रियल लाइफ है, पहले हम एज अ करेक्टर पसंद करते हैं, लेकिन अब मैं एज अ रियल लाइफ एज अपना आइडियल मानती हूँ। तो जो वो एक्टर हैं वो बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, अपने जो भी काम करते हैं उसमें पूरा इंडल्ज रहते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं मुझे अब जो है उनकी अच्छी लगती हैं, एंड आई स्टिल फॉलो हर। Good. Anybody else would like to share? मैम मेरा जो आइडल है, आपको पता ही होगा कि मेरे को डोरेमोन बहुत पसंद है। बचपन में डोरेमोन देखती थी, अब भी देखती हूँ, और मुझे अभी भी बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं डोरेमोन देखती थी तो मैं यही सोचती थी, काश मेरे पास डोरेमोन की तरह पावर्स होते, काश मेरे पास उसकी पॉकेट होती, मैं उसमें सबकी मदद करती, मैं भी उड़ती आसमान में बैम्बूकॉप्टर से। जैसे कि शिजुका शिजुका जैसे मांगती है, वो परी बनना चाहती है, और वो एक दिन के लिए डोरेमोन की पॉकेट ले लेती है, तो वो भी कितने मजे करती है। तो काश मैं भी ऐसे कर सकती, अभी भी है, लेकिन मुझे पता है मैं ऐसे नहीं कर सकती। Okay. Good. One more sharing, so that we go ahead. Anyone would like to share? मैम कैन आई? Yes, Nazmin. मेरा हमेशा से ये था कि मैं चाहती थी मैं सब कुछ बन जाऊं, एक डॉक्टर से लेकर एक प्रधानमंत्री तक। मैंने सोचा था मैं सब कुछ बनना चाहती थी, बट जैसे जैसे बड़ी हुई तो ये अकल आई कि कोई एक चीज बनो, बट बेस्ट बनो। Good, good, very good point. Be the best wherever you are. Okay, we'll go into the next slide. Thank you for being here today. I really appreciate that you took the time to be here and cooperate with me. Next slide, ma'am. Please Feedback give time. your valuable feedback. We would like our new participants to give feedback. Anju ma'am, Paramjeet ma'am, पहले आप दीजिए please. हेलो मैम। हेलो। हाँ जी। अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा लगा सुन के बच्चों की बातें, और इन्होंने काफ़ी हद तक साइंटिफिक वे में और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। तो थैंक्स टू ऑल, और उसके लिए आप भी बहुत अप्रिसिएशन है आपका भी, कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ भी अच्छे से जुड़ पा रहे हैं। तो थैंक यू टू ऑल, Thank you ma'am. बेस्ट Actually ऑफ लक। the show is of the students. मेरा कोई ज़्यादा रोल रहा ही नहीं अब इसमें, but it's good that the students are learning. Thank you for the sharing. ओके Satya ma'am, मैम। would you like to share? I think she's mute. Jyoti ma'am. Yes, ma'am. Hello to all. Hello. Am I audible? Yeah, clear. हाँ जी. So today's presentation was very nice and it really took us down the lane, memory lane. अपना बचपन याद आ गया, जो आपने वो राजा मंत्री चोर सिपाही वो सब दिखाई फोटोग्राफ्स, वो हमें सच में याद आ गई। एंड हर बार जो आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे बेटा, हम सब उसी फेज से निकल कर आए हैं। तो वाकई में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी एंड बहुत ही अच्छी थी। गुड वर्क, कीप इट अप। Thank you, Jyoti ma'am. Asta थैंक यू ma'am मैम। is with us for the first time, so I would want Asta ma'am to share. Asta ma'am, are you there? थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिपेंटिंग कि मैंने पहले वाले सेशंस क्यों नहीं ज्वाइन कर पाई। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत इंटरैक्टिव था, एंड द कॉन्फिडेंस विद विच योर स्टूडेंट्स आर टेकिंग अप द होल सेशन एंड यू आर जस्ट एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। बहुत खुशी सी हो रही है कि बच्चे कितना कुछ कर पाते हैं और हमको इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता। And talking about the topic of the session, मुझे जो ये सुनकर, जो क्वेश्चन, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, जो इंट्रोस्पेक्शन हम कर रहे हैं अबाउट आवर चाइल्डहुड, तो एज एन एडल्ट इट वाज
मेमोरी डाउन द लेन टाइप एक्सपीरियंस कि मैंने अपना यहाँ बैठ के 15 मिनट में अपना चाइल्डहुड पूरा का पूरा रीगो कर लिया। एंड फॉर स्टूडेंट्स मेरा फीडबैक यही है कि आप बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप अभी इस एक्सपीरियंस में, आप अभी बच्चे ही हैं, आप अभी चाइल्डहुड में ही हैं, आप इस एक्सपीरियंस में ही इस चीज को रियलाइज भी कर पा रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टाइम फॉर यू एंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस टाइम विल बी इन योर फ्यूचर ऑल्सो। जब आप बड़े हो जाएंगे और आप ये चीज खुद रियलाइज करेंगे कि हमने बचपन में क्या क्या सीखा, तो डेफिनेटली ये सेशंस भी आपको याद आएंगे, आपको इनकी वैल्यू भी पता चलेगी, और ये सेशंस आपको शेप कर भी रहे हैं टुवर्ड्स बेटर इंडिविजुअल, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, और जरूर बहुत अच्छा करेंगे आप अपनी लाइफ में। वेरी नाइस सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं आगे भी इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहूंगी। मनीषा मैम, यू आर जस्ट अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ मतलब मैं क्या बोलूं, अप्रिसिएशन आपके लिए बहुत ज्यादा कि आप बच्चों को इस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Astha ma'am. Actually, your sharing of telling the students that this is a golden period of their life, and this is Yes. where you can make your base of what you will be tomorrow. This was Yeah. really great. Thank you very much. Yeah. And I'll just again say this is totally a student show. मैंने सिर्फ Zoom का लिंक भेजती हूँ, बाकी सब बच्चे खुद करते हैं। You have already done the मेहनत ना। That's the fruit of it. और मैं एक बात बच्चों को सम अप करके ये कहना चाहूंगी, बेटा किसी भी मंजिल में पहुंचने में वो मजा नहीं होता जो रास्ते में होता है। तो ये रास्ता ही है जो आप मंजिल तक पहुंच रहे हैं अडल्टहुड की तरफ। लाइफ इज अ जर्नी टू एंजॉय, तो आप वो एंजॉय कर रहे हैं, एंड यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपको ऐसे टीचर्स मिले हैं, आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि आप साथ ही साथ इसको अप्रिशिएट भी कर पा रहे हैं। यू आर रियलाइजिंग हाउ गुड इट इज। Thank you, ma'am. Thank you for the sharing. Jyotsna ma'am, would you like to say something? यस मैम, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। पहले जब टॉपिक पता चला तो मुझे लग नहीं रहा था इस टॉपिक पे इतना कुछ डिस्कस हो पाएगा, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा था। स्टूडेंट्स ने बहुत इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट करा। पीपीटी बहुत गुड, बहुत अच्छी बनाई हुई थी, एंड द पिक्चर्स पीपीटी में जो यूज की डॉली वो बहुत अच्छी थी। एग्जाम्पल्स जो सबने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के शेयर करे वो भी बहुत अच्छे थे, रेलेवेंट था, मतलब बहुत वेरी नाइसली प्रेजेंट। और एक चीज है, जैसे अभी आस्था मैम ने भी बोला कि जर्नी, डेस्टिनेशन मैटर नहीं करता, जर्नी मैटर करती है, लेकिन जर्नी में आप किन लोगों के साथ हैं, आपकी कंपनी कैसी है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो अपने फ्रेंड्स ऐसे बनाइए जो आपको आगे तक ले जाने में हेल्प करे, जिनसे आप कुछ सीख सकें। Thank That's all you. I want to say. Thank you, Jyotsna ma'am. Very well said. And अब आपको पीपीटी की आप बात करें तो मैं बताऊं, ये बच्चे इतने प्रो हो गए हैं कि आई जस्ट टेल देम कि मुझे 2-3 दिन पहले पीपीटी भेज दो, तो कहते टेंशन मतलब हो जाएगी, अच्छे से बन जाएगी। सो दे आर रिलीविंग ऑल माई स्ट्रेस, अपने आप ही कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। Now feedback from students. We'll just take 1 or 2 feedbacks. We are running short of time. Anyone would like to give feedback? मैम मैं कुछ कहना चाहूंगी। Sure. मैम जैसे कि अभी मैम ने कहा कि मुझे नहीं लगा था कि ये टॉपिक है, इस पर कुछ बात हो पाएगी, लेकिन इसके ऊपर बहुत सी बातें हुई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम 2 से 4 शब्द ही कह पाते हैं, उससे आगे हम कुछ कह नहीं पाते। पर ऐसी क्लासेस में, अगर ऐसी क्लासेस हो और हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं, हमारी सोच भी बदलती है, और ये हमको कॉन्फिडेंटली बनाता है, और भी बहुत कुछ। और जैसे कि जो प्रेजेंटेशन देता है, जो प्रेजेंटेशन है, इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, और कुछ बातें हमारे मन में खुद भी आ जाती हैं। इनको हमें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हम टॉपिक्स याद करते हैं कि इनके ऊपर हम ये लिखेंगे वो लिखेंगे, ये भी जरूरत नहीं पड़ती है। Very good, very good. This is a learning